You are now unmuted. Good evening, Harshita. How are you? Good, ma'am. All well? You're fine? Yes, ma'am. We are fine, ma'am. Okay. Why so low? Hmm? Why so low, bacha? What happened? No, ma'am. I think it's network problem. Okay, okay. Oh. Hi, Shanu. Good evening. How are you? Hope you're doing well. Good evening, ma'am. Hope you're doing well. Good evening, Preetham. How are you? So today we will just wrap up with some questions which I've got you. Okay. And then we will be starting a new chapter, that is blood fluids and circulation. Okay? Okay? Okay, ma'am. So today I'll be wrapping with some questions and the regulations of respiration. Okay? Shall we start? सारे आ गए? Good evening. Deepak, good evening. How are you? Hope you are doing well. Deepak? Okay. So without wasting our time, we will start Yes, some ma'am. few questions. Okay. I have put in some ये मैंने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से लिए हैं जो कि पूछे गए हैं. ओके. हो तो रही है. बच्चे को नहीं दिख रहा हमें स्क्रीन शेयर करना. ओके. बच्चा आपको स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. Can you see the question? First question? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Questions are not visible. 1 second. Now you can see? No, ma'am. Now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So, इसमें मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है? And then we'll be discussing regulation of respiration, and then we'll be discussing new chapter, that is blood fluids and circulation. Okay? Good evening, Rinki. How are you? Good evening, ma'am. Fine. Okay. So here's the first question is the epithelial tissue present on the inner surface of the bronchioles and the fallopian tube. Fallopian tube का दूसरा नाम B क्या होता है? option. Fallopian tubes का दूसरा नाम क्या होता है? What is the second name for fallopian tube? That is oviduct. Okay? Oviduct.
Exactly. So why it is ciliated? What do you mean by the term ciliated? Harshita? सीलिया मैम कैप्चर करने के लिए सिलेटेड बोलते हैं Exactly, for the कलर फिल के motility लिए basically. Okay. Where there will be a motility, जहाँ पे भी motility होगी, वहाँ पे there are two type of, that is ciliated और या तो flagella भी होता है movement के लिए. ठीक है, यूकैरियोट्स में बेसिकली फ्लैजेला होता है. ओके, सो फॉर द मोटिलिटी विल बी यूजिंग ciliated epithelial tissue. ओके, और अब मुझे एक से आंसर नहीं चाहिए, मुझे सबसे आंसर्स चाहिए. ठीक है, आई वांटेड टू हैव अ इंटरैक्टिव लेक्चर टू ऑल द पीपल प्रेजेंट हियर, सो प्लीज, और जो भी पढ़कर आए हैं प्लीज लेट मी नो. And I want a quick answers. Plasmodesmata are locomotory structures, membranes connecting the nucleus with plasmalemma, connections between adjacent cells, lignifying cemented थ्री layers ऑप्शन between. मैम ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 Preetham, why it is 3? What are plasmodesmata? connect cytoplasm between cells ma'am once the cytoplasm of first cell and second cell are connected by plasmodesmata हर्षिता ये सही बोल रहे हैं, बताओ. प्रीतम सही बोल रहा है. हर्षिता, आपको क्या लगता है? प्लाज्मोडेस्माटा मैम सही बोल रहा है ये. साइटोप्लाज्म से cytoplasm connect एग्जैक्टली दैट इज कनेक्शन बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेल. ओके, रिंकी आपको समझ आया? ओके. Yes, ma'am. Okay. So, aerobic respiratory pathway is approximately termed as parabolic, amphibolic, anabolic or catabolic. फोर्थ ऑप्शन Shanu, you are wrong. कैटाबॉलिक No. Amphibolic. Yes, Ashita? मैम Ashita, I can't listen you. Your Ma'am, voice is not. Ma'am, Amphibolic. 3. Amphibolic, ma'am. Yes, it is amphibolic. Amphibolic का मतलब क्या है? It is in combination for both anabolic and catabolic. Okay? Get it? Preetham, Rinki, Shanu, catabolic का मतलब क्या होगा? Sorry, मैम सेकंड क्वेश्चन दिखा देंगे स्क्रीनशॉट लेना होगा Preetham, you are not audible. Can you be more loud? मैम सेकंड क्वेश्चन का थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है Second question का screenshot, that is low. यस मैम डन Okay. ठीक है. So basically आपको थर्ड क्वेश्चन क्लियर है सबको? Amphibolic क्यों है? Yes, ma'am. Because it carries both the reaction anabolic and catabolic. Exactly. Okay. Cytoskeleton is made up of callose deposit, cellulose microfibrils, proteinous filament, and calcium carbonate granules. Rinki, Shanu, Preetham, Harshita, Deepak. Proteinaceous. Ma'am, 3. Proteinaceous filaments, ma'am. Why not cellulose microfibrils? मैम cell wall is made up of cellulose Cytoskeleton is made up of basically actins और myofibril से बना रहता है ना. यस मैम
Okay, so which option do you think it will be correct? Deepak? Second option. किसने बोला ये? कंफ्यूजन थर्ड कंफ्यूजन हो रहता है। Deepak? Harshita? Ma'am, What do you think? I think second, ma'am. Exactly. Answer will be cellular microfibrils. Okay, because myofibrils actin filament से हमारा exoskeleton बनता है. Exoskeleton का function क्या होता है? It basically protection, mechanical support, gives the shape, rigidity to the cell. Am I clear? Yes. दीपक समझ आया? दीपक? Yes, ma'am. Second option. Okay, yeah. Ma'am, but in Middle amino is composed mainly of? Second option. Calcium pectate. Exactly. ma'am, Yes, Harshita. ma'am, but in NCERT they have mentioned proteinaceous filaments, ma'am. बेटा बेसिकली ये फिलामेंट से भी बने रहते हैं बट मेनली जो कॉम्पोजिशन होता है वो माइक्रोफिब्रिल्स और एक्टिन का होता है. Okay, ma'am. या ओके इसमें बेसिकली इज मेड अप ऑफ मेनली आई नो डाउट प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं बट जो मेन कंपोनेंट्स होता है दैट इज मायोफिब्रिल्स एंड एक्टिन. ओके Okay, ma'am. या Yeah, do you get this? Middle amino composed of calcium, Calcium pectate. calcium and magnesium, pectate, and small amount of hemicellulose. Harshita, see here the middle amino is mainly composed of calcium and magnesium peptide. Okay, but here some small amount of hemicellulose has been involved. Do you get it? Yes, ma'am. Now, the hepatic portal vein drains blood from liver, from heart, stomach, kidney or intestine. Deepak? First option. But किसने बोला है ये Yes, ma'am. फर्स्ट ऑप्शन? शानू Ma'am, Sanu. पढ़कर Yes, नहीं ma'am. आयो आजा. हेपाटिक पोर्टल वेन Ma'am, है. second. नहीं रिंकी, नॉट सेकंड आल्सो. शानू हेपाटिक पोर्टल वेन है. यस मैम गलत हो गया. तो बताओ क्या आंसर? दीपक जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मैम मुझे इसका फटाफट. फोर्थ ऑप्शन है. एग्जैक्टली. शानू अच्छे से समझ के आंसर्स देने हैं बच्चा. अपनी स्पीड को भी मेंटेन करना है. ओके ओके मैम. गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following are the smallest living cells known without a मैम different? थर्ड ऑप्शन माइकोप्लाज्मा. Mycoplasma. Okay. ये बताओ माल constitute about percentage of 50%. exactly 50%. किसने आंसर दिया ये? 50% सही है. Deepak. Ma'am, Deepak. चलो दीपक पढ़ाई कर रहे हो तुम. गुड. Now, which of the following components provide the sticky character to the bacterial cell? Cell wall,
nuclear membrane, plasma membrane, or glycocalyx? Deepak? I'm glycocalyx. Exactly. Glycocalyx. Fourth Exactly. option. समझ आया? Glycocalyx बेसिकली Yes. ये सेल वॉल का कंपोनेंट होता है दैट प्रोवाइड द स्टिकीनेस. ओके, गेट इट? आगे चलो. नाउ baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through the dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were I'm absent? premolar. Exactly. Premolar. Fourth option. Exactly. That is premolar. Okay? Molar. Which cells of cribs of lubricant secrete antibacterial lysozyme in the small intestine? Kupffer cells, Argentine cells, Panin cells, or zygomatic cells? Zygomatic cells होते हैं. Panin cells. Ma'am, pan. Sorry. Harshita. Preeta. Deepak. Options. Option C. That is Panin cells. C. Okay. समझ आया? Okay. Which is the important site for the formation of glycoprotein and glycolipids in eukaryotic cells? Ma'am, Golgi bodies. Exactly. Guys, important है बहुत ज़्यादा. Okay. Because it is asked in NEET 2017, AIPMT 2014, NEET 2019 also. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं. ओके, या cuboidal cell with brush borders of microvilli is found in where? Lining of intestine, ducts Third of... option. Exactly, that Ma'am, is proximal PCT. convoluted tubule of nephrons. ओके, बिकॉज उनको क्या चाहिए होता है, इससे 50 to 70% इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया, एंड टीसीटी में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है. एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. 14th will be identify the correct statement with reference to a human digestive system. Ileum opens into a small intestine. ये ऑप्शन तो गलत हो गया. ठीक है. Now serosa is the innermost layer. Some third option. That is also wrong. ठीक है. The correct option is ileum. That is highly coiled part. Vermiform appendix arises from duodenum. No, it's right from cecum. Cecum. Okay. समझ आया? Okay, ma'am. So the enzyme anterior kinase helps in the conversion of protein to polypeptides, Second trypsinogens option. to trypsin, and caseogen to casein, or pepsinogen to pepsin. Exactly, trypsinogen to trypsin. Second option. Then trypsin has been converted proteins into amino acids, right? Okay. Yes, ma'am. Okay. So here I'll be, ये तो 15 क्वेश्चंस था जो मुझे तुम्हें बताना था. ये दोनों के मिक्स क्वेश्चंस थे, सेल्स के भी और डाइजेस्टिव के भी. ठीक है? ओके, समझ आया कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? सेम क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेशंस बहुत होते हैं. एनसीईआरटी को बाइबल लेके चलो. ठीक है? कुछ मैम भी. उसमें मैम उसको डाउट था. आवाज नहीं आ रही, सॉरी. मैम डाउट था एक. हाँ बताओ. मैम वो जो क्रेप्स ऑफ लिबरकन
मैम वो वाला थोड़ा समझ में नहीं है। क्रिब्स मैम ऑफ वो लुब्रिकन आता नहीं है थोड़ा। बेसिकली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है, मैं बता देती हूँ तुम्हें। या जो क्रिब्स ऑफ लुब्रिकेंस है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पर होता है, ठीक है, एंड दे आर, उनका काम क्या होता है, एंटीरियल बैक्टीरियल लाइसोजाइम्स सीक्रेट करते हैं, उनके अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, क्रिब्स फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है, समझ आया? सिक्रीशंस का एंड ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। मैम इम्पोर्टेंट है। कफर सेल्स का क्या फंक्शन है? किनका? कफर सेल्स। कफर सेल्स बेटा ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, आपका म्यूकस भी रिलीज करता है समटाइम्स और पीएच मेंटेन करता है, ठीक है। हम सेल तो लिवर में होते हैं। हाँ, लिवर बेसिकली म्यूकस भी प्रोवाइड करता है कफर सेल्स, और आपकी सीक्रीशंस को भी मेंटेन करता है, ठीक है, गेट इट? ओके मैम। समझ आया? यस मैम। अब कोई मुझे पेरेंट सेल्स के बारे में बता दो, कौन बताएगा मुझे पेरेंट सेल्स के बारे में? हर्षिता? हर्षिता? बताओ। Ma'am, they are capable of phagocytosis. Yeah, they are capable for the phagocytosis. And Kupper cells आपके लिवर में होते हैं, और इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है शानू, हर्षिता? शानू? मैम कफर सेल्स का तो सिक्रीशन का भी बताया बताया मैंने। आपने। हर्षिता क्या काम होता है? और मैम ये भी फैगोसाइट्स की तरह एक्ट करते हैं। नहीं। दीपक? मैम लिखा है। दीपक? Ma'am, हर्षिता? engulf pathogens, cell debris. थोड़ा तेज, थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा, यू आर नॉट क्लियर। Ma'am, they will engulf pathogens, cell debris. हाँ, बेसिकली लिवर्स में होता है, म्यूकस भी सिक्रीट करता है, ठीक है, एंड देयर आर एंटीपैथोजेनिक प्रॉपर्टी भी मेंटेन करती है, ठीक है, समझ आया? ओके मैम। हर्षिता, गॉट इट? Yes, ma'am. गॉट इट? Yes, ma'am. Yeah, basically they are in liver, phagocytotic activity plus antibacterial भी करती है, mucus secretion भी करते हैं, ठीक है, आगे चले। आगे चले। यस मैम। Okay. Now I am taking the small topic for you guys, that is respiration and regulation के बारे में, ठीक है। नाउ रेगुलेशन कैसा है, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा रेस्पिरेशन है, वो क्या कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्रेन में देयर आर मेडुला और पॉन्स, ठीक है। मेडुला में केमोसेंसर्स होते हैं। क्या होते हैं? केमोसेंसर्स होते हैं। केमोसेंसर्स का क्या फंक्शन होता है? ये सरफेस पर होते हैं, ठीक है, एंड दे आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर, प्राइमरी, ठीक है। एक अनदर भी होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन पॉन्स, उसे हम क्या बोलते हैं? नीमोटैक्सिक
सेंटर, नीमोटैक्सिक सेंटर। नीमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? ऑल्टर कर सकता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, जो कि मेडुला का है। एम आई क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. समझ आ रहा है? नाउ इसके बाद जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यहां तक लिख लिया सबने? Yes, ma'am. ठीक है। जो इस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दे आर हाईली सेंसिटिव CO2 and H+. किसके लिए ये होता है? They recognize the changes between the CO2 and H+ ions. ठीक है, समझ आया? और सम रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं कैरोटिड आर्टरी के, ठीक है, एंड आयोटिक आर्च के। समझ आया यहां तक? कैरोटिड आर्टरी के कैरोटिड आर्टरी बेसिकली इसके दो ब्रांचेस होते हैं, नेक से पास होती है, दैट इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। नेक अपर नेक रीजन्स को ये पास करती है, सप्लाई करती है। ओके हर्षिता, क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Now there are nerves which secrete, which supply. There are nerves which supply, that is phrenic nerve and vagus nerve, which supply to lungs. ठीक है, and they also maintain the contraction of diaphragm. अब किसी को कोई भी डाउट है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में तो प्लीज मुझे बता दो। ऐसे ही अगर तुम याद करोगे ना फ्लो चार्ट में तो तुम्हें जल्दी समझ आता है। ठीक है, तो तुम्हें समझ आया मैंने क्या बोला? दैट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन, फ्रॉम मेडुला एंड पॉन्स। जो मेडुला के ऊपर केमोसेंसर्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, वो क्या करते हैं? दे फॉर्म्स द प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, एंड द अनदर सेंटर इज ऑन द पॉन्स व्हिच इज कॉल्ड नीमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, वो फंक्शनिंग क्या करते हैं? जो पॉन्स के जो नीमोटैक्सिक सेंटर है वो इंस्पिरेटरी रेगुलेशन करता है। क्या करता है रेगुलेशन? इंस्पिरेटरी रेगुलेशन। समझ आया? क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, फिर इसके बाद सम रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द कैरोटिड आर्टरी और आयोटिक आर्च, ठीक है, दैट रिकॉग्नाइज द चेंजेस बिटवीन CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। ठीक है, कोई भी चेंजेस होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. मैम जो ये नीमोटैक्सिक हम्म, मैम जो नीमोटैक्सिक सेंटर होता है ये मतलब ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम करता है। हाँ, मतलब बेसिकली ये उसे कंट्रोल करता है, उसका अमाउंट कितना, कैसे, वॉल्यूम, सब कुछ जो भी इंस्पिरेशन होता है ना, दैट इज कंट्रोल बाय द नीमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, ओके मैम। ऑल क्लियर?
क्वेश्चंस यहाँ तक सब क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Okay. Now I'll be starting with the new chapter with you people. That is blood. What is blood? Special connective tissue. Sorry. Special connective tissue, ma'am. Okay. And Consists of it consists of plasma formed elements. Okay. तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस क्लियर थे वैसे? एक सेकेंड, बिफोर आई बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर आई वुड लाइक टू से तुम लोगों को ये सब कुछ क्लियर है यहाँ तक पूरा? कोई भी डाउट है? हर्षिता, you No, see there is a confusion between the Kuffler cells and the Peynon cells. 1 second. जो Peynon cells होते हैं या Kuffler cells होते हैं, they Kuffler cells are present in the liver. ठीक है? 1 second. Yes, they are present in the liver. Okay, they do what? They do phagocytotic activity. ठीक है? And engulfing of RBCs. समझ आया? हर्षिता, yes, ma'am. got it? जो कफलर सेल्स होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन लिवर. पेनन सेल्स जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं. ठीक है? जो कफलर सेल्स होते हैं वो लिवर में होते हैं, फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी करते हैं, सम अमाउंट ऑफ म्यूकस. आप आगे जाके फिजियोलॉजी में पढ़ोगे कि ये लोग म्यूकस भी करते हैं, बट जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है उसमें फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी एंड एंगल्फिंग ऑफ आरबीसीज. ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? आरबीसीज एंगल्फ होते हैं. ठीक है? बट मोस्टली जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना रामाकृष्णन में भी, तो उसमें सब म्यूकस सिक्रीशंस भी है. ठीक है? सिक्रीशन का भी काम करता है कफलर सेल्स. ओके. और जो पेनन सेल्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एंड दे बेसिकली व्हाट सीक्रेट द लाइसोजाइम फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्शन. अगर कोई भी बैक्टीरिया इफ वो HCl से बच के इफ इट कम्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन, सो बाय द एक्शन ऑफ दिस लाइसोजाइम इट विल बी फेगोसाइटिक. ठीक है? ओके, समझ आया यहाँ तक? क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now, blood and fluids की बात करते हैं. ठीक है? There is a new topic, fresh topic है. ठीक है? So, blood fluid में पहले तो what is fluid? Anybody? What is fluid? हर्षिता, शानू, रिंकी, हर्षिता, दीपक, व्हाट इज फ्लूइड बचा? मैम जो लिक्विड फ्लो करता है. बेसिकली टेंड टू फ्लो लिख सकते हैं हम इधर. 1 सेकंड. अगर मैं Yes, लिखूं ma'am. टेंड टू फ्लो की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है? ये भी लिख सकती हूँ. इट इज अ मैटर ओके which includes what? Which includes liquid gases and plasmas. Can I say this? What is fluid? Right? I can show you the Yes, pictures. ma'am. बेटा बोलना भी है. हाँ ना, समझ आया नहीं आया? So has a beautiful slide of a fluid. ऐसी दिखता है fluid आपको? Yes, ma'am. ठीक है? That is a state of matter that includes liquid gases and plasma. Okay. Now what is blood?
What is blood? Blood is basically Special connective tissue. connective tissue. It is a special connective tissue which transport the important component to all the tissues, organs, cells. यहाँ तक बात समझ आई? Yes, ma'am. Now, blood, that is a that is a special connective tissue that contains fluid matrix, plasma and formed element. Right? जो blood है, that is fluid. Okay, इसका जो pH है वो कितना है 7.4 और इसकी जो viscosity है that is 3 into 10 raised to the power minus 3 to 4 into 10 raised to the power minus 3 और 3 to 4 centipoise. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Now, यहाँ तक क्लियर है सबको? हर्षिता, Yes, ma'am. प्रीतम, शानू, Yes, ma'am. शानू. Yes, ma'am. ओके ना, ये इतना लो यस क्यों निकल रहा है शानू? तबीयत खराब है क्या तुम सबकी? एनर्जी नहीं है आज? मैम बहुत ज्यादा पढ़ लिया? हम थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है. अच्छा, ओके. सो इस स्लाइड में जो आपको दिख रहा है वो आरबीसी फ्लो कर रहे हैं. क्या फ्लो कर रहे हैं? आरबीसी फ्लो कर रहे हैं. ठीक है. RBC. अब अगर मैं पूछूं what are the components of blood, that is plasma which is 90. Plasma 55%. अगर आप नॉर्मल ब्लड की cells बात होते हैं करते हो तो 55%. 55% होते हैं to 60% की बात करते हैं. और जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं. दैट इज आरबीसीज, RBC, WBC, platelet. WBC. यस. Platelet. ना अब हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं. प्लाज्मा जो 98% वाटर से बना होता है, ठीक है, और एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, मेजर प्रोटीन्स और fibrinogens and K plus, Cl minus, Na plus, HCO3 ये भी फ्लो करता है. ठीक है, समझ आया? नाउ प्लाज्मा के बारे में आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगी जो आजकल बहुत चल रही है. दैट इज प्लाज्मा इन्फ्यूजन. ओके, प्लाज्मा इन्फ्यूजन हम किस में यूज कर रहे हैं? कोरोना के पेशेंट्स में यूज कर रहे हैं. क्यों यूज कर रहे हैं हम कोरोना के पेशेंट्स में? बिकॉज ब्लड के अंदर, सपोज हमारे अंदर इम्यूनिटी है, ठीक है, तो जो लोग भी फाइट कर चुके हैं, जिनको भी कोरोना हो चुका है, ठीक है, उसका हम प्लाज्मा लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर एंटीबॉडीज होती है, ऑलवेज प्योरली डेवलप्ड हो जाती है, ठीक है. इफ दैट प्लाज्मा इफ विल बी इन्फ्यूज्ड बिटवीन द इन्फेक्टेड वन, तो उसकी इम्यूनिटी हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे. एम आई क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it is an important topic for the later purpose कि प्लाज्मा इन्फ्यूजन भी बहुत बार पूछ लेंगे कि क्यों करते हैं. तो बेसिकली टू इंक्रीज द इम्यूनिटी हम लोग इम्यूनोग्लोबिन्स बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लाज्मा इन्फ्यूजन. ठीक है. अब हम नर्वस सिस्टम, अब हम
सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज दिस? दीपक? डबल डबल सर्कुलेटरी सिस्टम तो दिख रहा है क्योंकि बिकॉज दिस इज अ ह्यूमन। इज इट अ क्लोज्ड वन सेकंड, या इट इज अ क्लोज्ड वन और ओपन वन? हम closed Closed. circulatory Closed. system. ठीक है। नाउ देयर आर two type of circulatory system, that is open and closed. Okay, can you appreciate this diagram? Open system, closed system. Here the arteries, valve and pump कौन कर रहा है? Heart. And all is a closed system. ओके, whereas ओपन में क्या है? आर्टरी Yes, है, ma'am. वॉल्व है, पंप भी हो रहा है, ऑस्ट्रियम भी प्रेजेंट है। ऑस्ट्रियम हमने कहीं और भी पढ़े थे, स्पॉन्जिला में पढ़े थे हमने, पॉलीफेरा में, ठीक है। दैट इज आल्सो अ ओपन सिस्टम। ओके, समझ आया यहाँ तक? Yes, ma'am. यस मैम। सी देयर Yes, इज ma'am. टू टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। मैं बताती हूँ, लिख लो। दैट इज ओपन circulatory system and closed circulatory system, ठीक है। now open circulatory system क्या है? in which there are large cavities, body cavities or spaces called as sinuses. Okay, they do not have any kind of vessel system, ठीक है। whereas closed have blood vessels. समझ आया ना? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको किस में देखने को मिलता है? आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में। यस मैम। whereas closed आपको किस में दिखता है? एनालिड्स में दिखना शुरू हो जाता है एंड कॉर्डेट्स में। समझ आया? लिख लिया ये? Yes. Here's the question. The normal blood count of RBC. 5 to 5.5. Ma'am, Ma'am, A option. 4 C to option. 5.5. That is 4.5 to 5.5 in males. ठीक है, and 3.5 to 4.5 in females. Am I clear? yes, ma'am. मेल्स में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो हाई होता है, ठीक है। Yes, ma'am. Now, what is the difference between closed and open circulatory system? Large body cavities called sinuses. No sinuses present. Blood vessels. Less efficient. Less pressure. More efficient. More pressure. थर्ड में क्या आ जाता है आपके पास कि इट विल बी डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
सेम लेवल पर होगा. ओके, इट इज नॉन सिस्टमैटिक. It is systematic. Am I clear? लिख लिया सबने ये? समझ Yes, लिया? ma'am. कोई भी डाउट है? Different level, हम्म? ma'am, different level distribution means what? मतलब कि अगर इसमें लार्ज किसी कैविटी में कम जा रहा है खाना या पीना, ठीक है, इसमें आपका इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हर एक टिश्यू को मिल रहा है, हर एक लेवल, हर एक टिश्यू ऑर्गन सेल को मिल रहा है. बट हेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इधर किसी को मिले, मतलब किसी टिश्यू को मिले नहीं मिले, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो अनइवन हो रहा है इसमें. ठीक है. नाउ यू विल टेल मी नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी. ओपन सर्कुलेटरी सीन इन व्हाट? Annelids and chordates, non-chordates, then arthropoda, molluscs, or none of the above? Third option. Three. Arthropods and Okay. 3. mollusks. ठीक है. Now tell me one thing. Why transportation is important? Deepak, why transportation is important? Harshita? Harshita? And to supply energy to all parts of body. Ma'am, Supply energy. Yeah, to supply all the nutrients of the body and ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी जाता है. basically transportation is important because transport of nutrients, okay, transport of oxygen, transport of metabolic waste, this all need to transport, right? Or transport of exocrine hormones. Am I clear? ये इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए what we have blood, we have lymph, and we have what? Hemolymph. Hemolymph हम सिर्फ इंसेक्ट्स पर बात Ma'am, करेंगे, ठीक है? Ma'am, fourth option में क्या है? Last line. That is transport of exocrine hormones. Okay, ma'am. Okay, exocrine या endocrine hormones. Okay, Okay, ma'am. समझ आया? Now Yes, ma'am. अब ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है? RBCs, commonly known as erythrocytes, ठीक है? नॉर्मल लेवल और काउंट इज 4.5 to 5.5 million mm cube. Okay. Now lack न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है?
RBCs contain a pigment called, which pigment do RBCs contain? Hemoglobin. 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 Okay. Now, if RBCs count less, then the condition is known as anemia. कौन सी condition होती है? Anemia. There are different type of anemia. Vitamin B12 deficiency anemia, hemolytic anemia. Okay. And there is iron deficiency anemia. समझ आया आरबीसीज के बारे में? लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. If anemia is the condition, so what are the symptoms? लिख लिया? Can I rub it? मैम Yes, ma'am. लास्ट में क्या है? Vitamin B12 deficiency, hemolytic anemia, and iron deficiency anemia. ठीक है? Can I rub it? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? लैसिट्यूड, लैसिट्यूड मतलब आलसी, लेजीनेस, लेस ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, Fast heartbeat. सॉरी, Fast heartbeat. हाँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. ठीक है. सो दीज आर व्हाट कंडीशंस सिचुएटेड टू एनीमिया. ओके. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब जो आयरन है बॉडी के अंदर वो कम है, उसके वजह से आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है. हीमोलिटिक एनीमिया कब होता है? नाउ देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ या साइजेस ऑफ erythrocyte like megaloblastic anemia, macroblastic anemia, microblastic anemia, macrocytic, microcytic या तो आपका megaloblastic. They are the three type of on the basis of sizes of RBCs. ठीक है. Now इसके लिए एक hereditary disorder भी था, sickle cell anemia, where the RBCs क्या हो जाता है? sickle cell हो जाता है. ये भी आप लोगों ने 12th में पढ़ा था, right? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now we'll move to what? WBCs. ठीक है. That is also known as white blood cells. Leukocytes. ठीक है. Leukocytes. Normal range is 6,000 to 8,000. Okay. And if it reduce, तो क्या होता है? That is leukocytopenia. Leukocytopenia, जिसमें जो ये सेल होते हैं वो रिड्यूस कर जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स. उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोपेनिया. क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोपेनिया. ठीक है. Now this RBCs has been divided, WBCs is divided into two types. That is granulocyte and granulocytes में we have three: eosinophils, basophils, neutrophils. Now lymphocytes and monocytes. यहाँ तक लिख लिया सबने? Can I have it? समझ आया? Yes. मतलब Yes, ma'am. there are white blood cells, they are also known as leukocytes. 6 to 8,000 they are in number. If it's reduced, that condition is known as leukocytopenia. Now this WBCs has been divided into
two cells, that is granulocyte and agranulocytes. Granulocytes are of three types, that is eosinophils, basophils and neutrophils. Whereas agranulocytes are lymphocytes and monocytes. Am I clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, Can I ma'am. rub it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Neutrophils. This is abundant, that is 55 to 60% in body. ठीक है, they are abundant. Okay, they are abundant and they are help in the defense mechanism. मतलब they act on foreign body material. Foreign body material. Okay? यहाँ तक clear? Can I rub it? Yes, ma'am. Neutrophils, they do not have any color. Okay? Now we have basophils. 6 to 8% होते हैं. They secrete what? Serotonin, histamine and heparin. ये तीनों secrete करते हैं. ठीक है. Now when they will be secreted in the terms of allergy. एलर्जी में सेरोटोनिन हिस्टामिन दोनों रिलीज होती है. ठीक है. कॉमन एलर्जीज होती है ना, जैसे आपके पास किसी भी पर्टिकुलर फूड्स एलर्जी, जैसे डस्ट एलर्जी हो गई, फूड एलर्जीज हो गए, तो इसमें आपका सेरोटोनिन हिस्टामिन बढ़ा हुआ होता है. ठीक है. सो बेसोफिल्स कब निकलते हैं? व्हेन देयर विल बी एलर्जिक रिएक्शंस. ओके, गेट इट? आगे चलो. Ma'am, basophils Yes, ma'am. 5 to 1%. Ma'am. सॉरी, Ma'am, basophils 0.5 to 1%. Ma'am, they are least to ma'am. they are least, but when there will be an allergic reactions, it will increase to 6.8%. Okay, ma'am. They increase to 6.8%, then there will be allergy. Normal जो ratio होती है, that is 0.5 to 1%. Okay, और जो eosinophils होते हैं, that will be 3 to 8% की रेशो में होते हैं. ठीक है. Yes, ma'am. ओके. Okay, ma'am. Yeah. Now eosinophils. These are basically inflammatory reactions में निकलते हैं. कौन से रिएक्शंस में? इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस में. मतलब अगर कहीं पे भी चोट लग जाती है या स्वेलिंग होती है, तब एसिनोफिल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं ज्यादा. दे आर ऑफ अ रेड कलर. कौन सा कलर अपीयरेंस देता है? रेड कलर. ओके, क्लियर? आगे चलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ देयर आर, हमने ग्रैन्युलोसाइट्स डिस्कस कर लिया. नाउ हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स डिस्कस करते हैं. A granulocytes, that's a lymphocytes
and monocytes. Monocytes are larger in number. Lymphocytes का क्या काम होता है? There are T cells and B cells. आप लोगों ने पढ़ा होगा B cells जो होते हैं basically they help in Bone marrow defensive bone marrow cells. They have been defensive cells. ठीक है, they directly act on foreign particle or bacteria, virus, even every organism it will directly act on it. Okay, where are T cells are the helper T cells. Helper T cells. Can you tell me the significance of T cells, helper T cells? मैम ये बी सेल को हेल्प करता है. बच्चा वो तो मैंने बोल दिया था. हेल्पर टी सेल्स दे नॉट डायरेक्टली एक्ट ऑन फॉरेन इन्वेडर. एंटीबॉडी बनाने. एंटीबॉडीज भी बनाते पर देयर इज अ स्पेसिफिक, आपने 12th में पढ़ा होगा, स्पेसिफिक रोल होता है टी सेल्स का. दीपक, डू यू नो दैट रोल? सॉरी, You mean response of the body? या बेसिकली जब भी हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट होता है कुछ भी, दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांट. ओके, इट बेसिकली हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज the foreign cell with the body cell. So जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो हम टी सेल्स का जो वॉल्यूम है वो कम कर देते हैं. ठीक है, हम जो टी सेल का जो काउंट होगा वो हम कम कर देते हैं so that ऑर्गन रिजेक्शन ना. समझ आया? Yes, ma'am. ओके. आपको ये सारे सेल्स का फंक्शन पता चला? प्लेटलेट्स पे चले ना. Monocytes. या मोनोसाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली एट द टाइम ऑफ कीमोस्टैटिक रिएक्शंस में भी आ सकते हैं. ठीक है, या कोई भी एक्सीडेंटल होता है ना, कोई भी एक्सीडेंटल जिसमें आपका वुंड स्क्रैचिंग होती है उसमें मोनोसाइट्स निकलते हैं. ठीक है, ओके, एवरीबॉडी एग्री विद मी? Yes, ma'am. हर्षिता, प्रीतम, रिंकी, Yes, ma'am. एग्री विद मी? क्योंकि जो मोनोसाइट्स होते हैं दे आर द लार्जर वंस. ठीक है, एंड दे आर agranulocyte, and when there will be an accidental या road traffic accident where there will be wound और exposure होता है तब आपके मोनोसाइट्स निकलते हैं. ठीक है, क्लियर? यस मैम. नाउ प्लेटलेट्स पे चलता है. प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग also known as thrombocytes. बेसिकली 9 फैक्टर्स चाहिए होते हैं फॉर ब्लड क्लॉटिंग्स. नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 1.50 to 3.50. ठीक है, मिलियन mm³ ठीक है, लैक्स है ये, 1.5 लाख से 3.5 लाख होते हैं. अगर ये कम हो जाता है तो क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कौन सी उस पे डिजीज में देखने को मिलता है? डेंगू की डिजीज में भी देखने को मिलता है. दे आर द इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट फॉर द पार्ट. इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बेसिकली जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है वो बेसिकली मेजर पार्ट होता है ये बताने के कि देयर विल बी अ चांसेस ऑफ डेंगू.
ठीक है, बिकॉज लाइसिस हो जाता है आरबीसीज का, ठीक है, आरबीसीज का भी लाइसिस हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट भी कम हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स और किसमें कम होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में, डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में भी, डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में भी ब्लड क्लॉटिंग डिलेड होती है, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज होता है डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में, ठीक है। ब्लीडिंग भी ज्यादा देर तक होती है, क्लॉटिंग में भी टाइम लगता है। समझ आया? दिस इज अ टिप फॉर यू फॉर टुडेज लेक्चर कि आपने एक बीमारी के बारे में क्या सीखा कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। समझ आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। चलो लास्ट एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बताती हूँ जो तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। लॉस ऑफ ब्लड कॉल्ड एज इश्कीमिया, क्या बोलते हैं, इश्कीमिया, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो देयर विल बी अ कंडीशन नोन एज टैकीकार्डिया। एग्री विथ मी? टैकीकार्डिया और किस में दिखता है, एंजाइना पेक्टोरिस में। व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस, एनीबॉडी नो? हर्षिता, प्रीतम, दीपक? मैम चेस्ट रीजन में पेन होता है। एग्जैक्टली शानू, चेस्ट रीजन में पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। देन देयर विल बी टैकीकार्डिया, ओके। देयर विल बी रेफर्ड पेन आल्सो, रेफर्ड पेन in the left arm, left region of jaw, left region of head, समझ आया? यस मैम। ठीक है। There will be when there is a loss of blood, ठीक है। अगर सेम पे अगर सपोज मेरे पास लॉस ऑफ ब्लड हुआ है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और अगर ब्लड कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, ठीक है, अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो बीपी भी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। अगर बीपी कम होगा तो देयर विल बी कंडीशन नोन एज ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया किस में भी देखने को मिलता है, दैट मींस बीपी कम अनीमिया में होगा। एम आई क्लियर? शालू, रिंकी, Yes, ma'am. प्रीतम, हर्षिता, दीपक, यस मैम। समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। हाँ जी प्रीतम। मैम मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और रिफर्ड पेन होता है मैम, वो कौन सा टर्म एक तो बोले, वो थोड़ा छूट गया था। रेफर्ड पेन बेटा, देयर इज अ कंडीशन, जब सपोज मेरे को चेस्ट पेन हो रही है, ठीक है, जब वही पेन इट विल गोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी, पहले लेफ्ट आर्म में होता है, फिर लेफ्ट जॉ में होता है, फिर लेफ्ट साइड ऑफ द हेड पर होता है, ठीक है। व्हेन देयर विल ऑल द पार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड इज बीन इन्वॉल्व्ड, दैट इज नोन एज द रेफर्ड पेन।
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में मतलब कि सांस फूलेगी, पैल्पिटेशंस भी होते हैं, पैल्पिटेशंस भी मैम होते कौन सी चीज का सिम्टम्स है ये सब? हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, दैट इज चेस्ट पेन। ठीक है, ओके। अब एक बार मुझे आप लोग बताओ क्या क्या समझ आया, क्या क्या समझ नहीं आया, मुझसे डाउट पूछ लो प्लीज अभी तक। आज मैंने इंट्रो लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम बताया क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट डिस्कस करे ब्रीफली, समझ आया? कोई भी डाउट है? रिंकी आपको समझ आया? नो मैम। रिंकी, प्रीतम, हर्षिता, कौन समझ में आया? Yes, ma'am. गेट इट? एंजॉय टुडे लेक्चर। Yes, ma'am. यस मैम। क्या क्या पसंद आया आज के लेक्चर में सबसे ज्यादा? व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट? दीपक? Components of blood. Components of blood. प्रीतम के लिए कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। शानू आपको? मैम टाइप्स ऑफ WBC। नाइस। हर्षिता आपको? Ma'am, MCQs questions. You just like MCQs question, not like blood and its components. Like it, ma'am. Nah, you don't like it. That's why you said MCQ questions you only like it. Okay. Deepak, you? मैम कंप्लीट लेक्चर। Oh, दीपक is saying no मैम, मुझे सब समझ आया है। मैं पूरा कंप्लीट लेक्चर बोलूंगा। Okay. Any doubt till now किसी को भी? Is everything clear? नो मैम। यस मैम। No ma'am, All yes clear. ma'am, all clear. ठीक है. So basically your test will be on next Saturday. Okay, not coming Saturday, it will be on next Saturday. ठीक है. Syllabus I'll be discuss you by tomorrow. Okay, कि what is the I'll discuss you tomorrow what will be the syllabus for your test. ठीक है. दिस इज और कल मैं तुमसे इस चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी, लास्ट ईयर में जो जो भी पूछा है। ठीक है, और हाँ यही डिस्कस करना हम कल टेस्ट नहीं होगा? हम्म कल टेस्ट नहीं होगा? नहीं, कल नॉर्मल क्लासेस है हम आपकी। ठीक है, डाउट क्लियर है? हाँ डाउट क्लास है मैम कल। हाँ कल डाउट क्लास है। कल जितने भर के मुझसे डाउट पूछने हो मैम पूछ लेना। ऑल ठीक है, बोलो बताओ। मैम ऑल सब्जेक्ट के कैंसिल है टेस्ट। हाँ फिजिक्स का भी? हाँ ओके कंफर्म? मैम। यस कंफर्म। तुम्हें क्या लगता है मैं आज तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगी फिर कल बोल दूंगी ये ओपे पेपर है? नो 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 नो। सभी सब्जेक्ट के कैंसिल्ड है, द पेपर्स विल बी ऑन नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, ओके मैम। और कोई थैंक यू डाउट है मैम। मुझसे पूछ लो। इतनी खुश हो रहे हो शानू आप है? कह रहे मैम थैंक यू। मैम मेरी इसकी प्रिपरेशन नहीं थी। अच्छा कोई बात नहीं, यू गॉट टाइम टू गेट प्रिपेयर्ड। ठीक है, प्रिपेयर वेल यस मैम। एंड आई होप बायो तुम लोग बहुत अच्छे से करो, वरना बताया था ना धमकी याद है ना मेरी, दिमाग में गूंजती है ना वो। यस मैम। हाँ गूंजनी भी चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है, एंड what else is remaining? I think this is sufficient for today, right? अच्छा ना यार, next lecture में I'll be covering you ABO blood grouping. ठीक है, blood grouping, blood disorders, okay, and regulation, double circulation, heart and diseases of heart. ये टॉपिक्स मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी।
Okay. Coagulation of blood, ma'am. Yeah, coagulation of blood. Anything else? और कोई टॉपिक बचा है? That's it. कोएगुलेशन ऑफ ब्लड से टॉपिक्स कम आते हैं वैसे, बट स्टिल आई विल बी कवरिंग दैट. ठीक है. एवीओ से बहुत पूछते हैं. कार्डिक साइकिल. कार्डियक साइकिल वो सब मैंने लिख दिया बच्चा. डिजीजेस हार्ट पूरे में वही आएगा. ठीक है. नाउ विल बी ओके, विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल व्हाट इज पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कार्डियक साइकिल. ठीक है. नाउ फिर उसके बाद मैं तुमसे वो भी डिस्कस करूंगी दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है. व्हाट इज अदर मेथड्स. ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन. आई विल बी डिस्कसिंग दैट टू. ओके. एंड मैम लिम्फेटिक सिस्टम. या लिम्फेटिक्स में दीपक क्वेश्चंस इतने आते नहीं है. मैं बता दूंगी, डिटेल्ड में सब बताऊंगी. ठीक है. बट लिम्फ इतना पूछते नहीं है. ठीक है. जो पूछते हैं वो पूछते हैं डबल सर्कुलेशन से, कार्डियक साइकिल से. पीक्यूआरएस तो आता ही आता है. ईसीजी तो आपका हर साल का फेवरेट क्वेश्चन ही है उनका कि ईसीजी आता ही आता है. बाकी तो ठीक है. ठीक है. ओके. कैन आई लीव नाउ. ठीक है. ये लिख लो और प्लीज थोड़ा पढ़कर आओगे तो मुझे खुशी होगी कि तुम पढ़कर आई हो. ओके. ओके मैम. ओके मैम. ओके मैम. यस. और आज Thank जैसे you, तुम ma'am. लोगों ने Bye, और ma'am. आज जो तुम लोगों ने मेरे को वो किया था, लेक्चर बताया था, तो वो मुझे अच्छा लगा था. ठीक है. और तो खैर और तो कुछ नहीं, और तो बस ओके. I'll be ending this lecture. Good night. Go safe. Okay. Go safe मतलब be safe at your home. Bye bye. Tata. बाय मैम. Thank you. Bye, ma'am. Tatas.